Hello, my dear students. Welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. Dear students, in last session, we have discussed about certain Mendelian disorders in detail: hemophilia, sickle cell anemia, and phenylketonuria. And we have seen that the recessive trait, when it comes in homozygous condition, then only it is able to express itself. Now today we are going to start with chromosomal disorders. So the chromosomal disorders on the other hand are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more than one chromosome. So here directly the chromosomes, they are affected as a whole structure. Actually, failure of segregation of chromatids during cell division results into either gain, so one chromosome is added, or loss of the chromosome, one chromosome is deleted. So in this way, this type of chromosomal disorder is known as aneuploidy. For example, Down syndrome, it will result in the gain of extra copy of chromosome number 21. So 21 number is autosome, and due to here this 21 number of chromosome, it is gained. So the total chromosome number in that person, it becomes 47 instead of 46. We are going to see the detail about Down syndrome later on. Similarly, another syndrome known as Turner's syndrome, it results due to loss of an X chromosome in human female. So it is related to sex chromosome, and due to this the number of chromosome, it becomes one less, that is 45. And even failure of cytokinesis after telophase stage of cell division result in an increase in a whole set of chromosome in an organism, and this phenomena now is known as polyploidy. So whole set will increase because as the chromosomes, they are separated during anaphase, then after telophase occurs, and telophase, after that cytokinesis should occur, but when it fails to separate, cytokinesis is not followed after telophase stage, then it will result into double the number of chromosomes. So whole set will be becoming double, and this is very common in plants, like triploid condition, tetraploid condition, or polyploid condition, like this. Okay. Now we will discuss about detail of Down syndrome and further few syndromes which are which are related to humans. So here Down syndrome, it is autosomal trisomy. So first of all, we just understand the meaning. We'll see the cause. Actually, the presence of an additional copy of the chromosome number 21. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी. So here, as I have said to you, एक क्रोमोसोम ऐड होगा. सो ट्राइसोमी यहाँ पे बोली है. जनरली पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. सो ट्राइसोमी ऑफ 21. सो जहाँ पे भी 21 नंबर का क्रोमोसोम है, वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स की पेयर होगी. जनरली पेयर हम 2 के लिए यूज करते हैं, बट हियर 3 ऑफ द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. नाउ दिस चार्ट इज शोइंग कैरियोटाइप. सबसे पहले मैं आपको कैरियोटाइप का मीनिंग समझाती हूँ. कैरियोटाइप में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सबसे पहले उनको प्रॉपरली अरेंज किया है. हियर 6 नंबर से स्टार्ट किया है. जनरली 1 to 23 chromosomes are there. First pair to 23 pairs, they are present, but here the main focus we have to give is on 21 number, क्योंकि ये जो syndrome है, Down syndrome, it is occurring due to 3 chromosomes and at 21 number. So 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें 3 की पेयर बन रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो.
Okay, so this is the main cause. Now what are the symptoms? सबसे पहले आप पिक्चर में देख सकते हो, small nose, mouth and ears, a typical shape is there, slightly bent fifth finger, so palm का भी structure थोड़ा typical है. Then here the almond shaped eyes with skin fold covering inner corners, generally mongoloid का जो typical shape होता है उस तरह का shape दिखेगा आपको. Then white spots and colored part of eye. So in this way these are certain features. Then even flat and round face, बहुत ही typical structure होगा, आप easily पहचान सकते हो. Then even short and stocky build, या हम short stature बोल सकते हैं. So in this way, how you have to write the symptoms that I have shown you here. First is the affected individual is short statured, जो हम बोलते हैं एकदम नाटी हाइट का, छोटी हाइट का, with small round head, even furrowed tongue. टंग का भी बहुत टिपिकल शेप होगा. इस पिक्चर में हम नहीं देख सकते, बट टंग का भी एक टिपिकल स्ट्रक्चर होगा, फरोड, and partially open mouth, so it will be drooping mouth. उनके माउथ के अंदर से कंटिन्यूसली वाटरी सब्सटेंस निकल सकता है, ऐसा भी. दे आर नॉट एबल टू जस्ट क्लोज देयर माउथ टाइटली. सो इस तरह की भी सिम्टम्स हम देख सकते हैं. सेकेंडली, पाम इज वेरी ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर है. देन इवन फिजिकल साइकोमोटर, इस तरह की भी साइकिक एबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं. एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड. जितने भी सिंड्रोम्स हैं ये एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा, आइदर मेंटली रिटार्डेड और दे मे बी स्टराइल. तो इस तरह के पॉइंट्स आपको कॉमन मिलेंगे. बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका मेन कॉज क्या है, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम. Then we'll discuss about next type of syndrome, that is Klinefelter's syndrome. Klinefelter's syndrome, it is caused due to presence of an additional copy of X chromosome. So additional copy है तो 47 नंबर टोटल होंगे. जनरल कॉमन नंबर है 46. अब मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. 23 पेयर्स बोलो या 46 क्रोमोसोम्स बोलो, एक ही बात है. But here one more is added, so 47 it will result. So it results into the karyotype of 47. आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ पे. और शॉर्टली इट इज़ नोन एज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. आप देखो लास्ट पेयर हमेशा सेक्स क्रोमोसोम को शो करती है, और यहाँ पे एक्चुअली 2 होने चाहिए. दिस इज़ वाई क्रोमोसोम एंड 2 X chromosomes are present, means one additional X chromosome is there. यहाँ पे आप देख सकते हो XXY. सो XY तो होता ही है, बट उसके बदले एक X ऐड होगा. सो डेफिनेटली इसके जो सिम्टम्स होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, इसी से रिगार्डिंग होंगे. यहाँ पे आप पूरा कैरियोटाइप देख सकते हो. ये सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम पेयर है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, then 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23rd pair. 23rd pair ऑलवेज हम सेक्स क्रोमोसोम को डिनोट करते हैं, और बाकी के 1 to 22 पेयर्स उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. तो ये ह्यूमन का कैरियोटाइप है. अब हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स देखते हैं. ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, क्योंकि एक्स वाई है, वाई का इफेक्ट होगा, मेल फीचर्स होंगे, बट एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम ऐड हुआ है तो फेमिनाइन कैरेक्टर भी इसमें दिखेंगे. सो फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द पिक्यूलियर फेमिनाइन फीचर. और जब इस तरह के पर्सन में फेमिनाइन फीचर्स आते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, गायनेकोमेस्टिया. तो ये भी वर्ड आपको याद रखना है. सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड वेयर द ब्रेस्ट डेवलपमेंट इट इज़ सीन, एंड ऑब्वियसली दे आर स्टेराइल. जब भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो वो
स्टेरिलिटी को या मेंटल रिटार्डनेस को इस तरह से डेवलप करेगी। ओके, लास्ट में हम देखते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम का सबसे पहले कॉज, इट इज अकरिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, मतलब इट इज दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे डिलीट हो रहा है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम 45, और इसको हम डिनोट करेंगे एक्स ओ। यहाँ पे एक एक्स मिसिंग है, तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे ओ। सो ओ एक अलग से टिपिकल क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे हमने जो खाली स्पेस है उसको हमने ओ या ज़ीरो से डिनोट किया है, आप जो भी बोले, बट वन एक्स इज मिसिंग। ओके, ये आप कैरियोटाइप में देख सकते हैं, यहाँ से नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, और ये वाला 23rd पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम को डिनोट करता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट है, एंड वी हैव डिनोटेड हियर एक्स ओ। ओके, सो डेफिनेटली जो एक्स एक्स की वजह से परफेक्टली फीमेल के फीचर्स होने चाहिए वो यहाँ पे मिसिंग होंगे, क्योंकि एक पूरा एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, एंड दिस इज नोन एज मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दो हमने एग्जाम्पल्स ट्राइसोमी के देखे थे, but here we have seen monosomy. Symptoms are definitely the person will be sterile, ovaries are rudimentary, presence होंगे ovary but functional नहीं होंगे, बहुत primitive type के होंगे, underdeveloped हम बोल सकते हैं. Then lack of other secondary sexual characters. यहाँ पे मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, what do you mean by secondary sexual characters? All the female features, they are coming under secondary sexual characters, like the hair growth at the genital area, the development of mammary glands, the feminine voice, the other hormonal secretions, तो ये सभी secondary sexual characters में आप देखोगे, and definitely the poor development of breast will be seen, and even some cardiovascular abnormalities are also seen here, और generally webbed skin आप देखोगे particularly in neck region. So इस तरह की typical appearance हम आराम से देख के अंदाज लगा सकते हैं. So in this way we have seen last portion of the chapter, in that chromosomal disorders we have discussed today. और बायोलॉजी में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी टॉपिक का हेडिंग है वो आप खास माइंड में सेट करके रखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं और उतना ही आंसर एक्सपेक्ट करते हैं. स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कितना लिखना क्या लिखना, तो वो आपको हेडिंग अगर याद होगा अच्छे से तो आप बहुत ही क्लियरली टू द पॉइंट वाइज आपका आंसर दे सकते हो. सो ये आपको खास याद रखना है. और साथ साथ में आपको चैप्टर का हमने एंड कर दिया है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस में आपको क्लास वर्क में लिखने के लिए देना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनना. सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है हेरिडिटी, देन म्यूटेशंस, देन एलिल्स, देन फिनोटाइप, जीनोटाइप. आप पूरे टॉपिक को समझ के अपने ओन वर्ड्स में अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहो या लिखना चाहो तो भी करेक्ट होगी. देन वेरिएशंस, इवन लिंक्ड जीन्स, देन लिंकेज, देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो ये सारे आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे वो आप ट्राई करना. इसके बाद में आपको कुछ एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन देना चाहती हूँ जो आप आपकी क्लास वर्क में लिखोगे. एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. देन दूसरा मैं आपको देना चाहती हूँ 6th क्वेश्चन, using a Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the first filial generation
after a cross between a homozygous female and heterozygous male for a single locus. इसके बाद मैं आपको देना चाहती हूँ क्वेश्चन 9. Briefly mention the contribution of T.H. Morgan in genetics. इसके बाद 10th question. What is pedigree analysis? Suggest how such an analysis can be useful. 11th question है how is sex determined in human being? जितना हमने क्लास वर्क में किया है वही आप कॉपी डाउन भी कर सकते हो या आप अपने ओन वर्ड्स में भी इस आंसर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज 13th. Explain the following terms with example like codominance and incomplete dominance. इसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन 15th. Who had proposed the chromosomal theory of inheritance? Then 16th. Mention any two autosomal genetic disorders with their symptoms. ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा वर्क अप टू नेक्स्ट सबमिशन हमारा जो वेंसडे को होता है तब तक आप कंप्लीट कर सकते हो और मुझे आप दे सकते हो. Till then, revise all the topics. This chapter is very important. I am telling you again and again. So please do revise it properly in time and do your work. Take care. Bye-bye, students.